Hello viewers, I welcome all of you in this channel Quantum Physics classes. I am Abhay Kumar. We will we will discuss today applications of Gauss's theorem, another important topic. The first application is electric field intensity at a point due to an infinitely long charged state conductor. It is also called line charge using Gauss's theorem. Suppose an infinitely long charged wire having linear charge density lambda. Let xy be an infinitely long charged wire having continuous charge distribution over its entire length. Let P be a point close to it at distance small r where electric field intensity due to this infinitely long charged wire or line charge is to be calculated. This is infinitely long, xy be an infinitely long charged wire having linear charge density lambda, that is charge per unit length on the charged wire is lambda, that is q upon h, charge upon length. P be a point close to it at distance r where electric field is to be calculated. For this we have to take a Gaussian surface. What is Gaussian surface? A Gaussian surface is a closed surface enclosing a charge or continuous charge distribution at every point of which electric field intensity is the same. Gaussian surface जो है वह किसी चार्ज को सराउंड करने वाला या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को सराउंड करने वाला, घेरने वाला ऐसा इमेजनरी स्फेरिकल सरफेस है, ऐसा काल्पनिक गोलीय तल है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है वह समान होता है. तो ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस थ्रू पॉइंट P of radius Gaussian surface in form of a sphere through point P of radius small r. This Gaussian surface here, for a point charge the Gaussian surface be a sphere. For a line charge the Gaussian surface must be an imaginary cylinder. The Gaussian surface must be cylindrical surface for a line charge, and for a point charge it must be a Gaussian, it must be a sphere. So here cylindrical surface is the Gaussian surface through point P. This is the Gaussian surface in form of an imaginary cylinder. At point P, the direction of electric field must be radial. Along the radial means along the distance r. Electric field intensity will be along the distance r. That is radial. It is called radial. P point पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वह जो लाइन चार्ज है, चार्ज कंडक्टर है, देखिए
रेखिक जो आवेश है उसके परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, उसके नॉर्मल आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, विच इज ऑल्सो कॉल्ड रेडियल. The direction of electric field intensity is this along OP, outward direction. Or here we can suppose a elemental area of the Gaussian surface, ds. ds is the elemental area. Vector is the area vector which is drawn normal to the area. Here a small area ds of the Gaussian surface. Gaussian surface is named as A, B, C, a small b, a small c and a small d. This is the Gaussian surface. Surrounding some charge of the line charge. The Gaussian surface. And let the length of the Gaussian surface be a small l. This length is a small l. For the symmetry, the conductor is the conductor wire is infinite length, of infinite length. So from the symmetry, this Gaussian surface, this distance OP and this distance towards left must be same. From the symmetry, सममिति से दोनों डिस्टेंस, ये डिस्टेंस P पर और इस साइड में जो गॉसियन सरफेस सिलिंड्रिकल सरफेस है उसका डिस्टेंस भी दूसरे साइड में डिस्टेंस जो होगा वो इक्वल होगा. फ्रॉम द सिमेट्री बिकॉज द लाइन चार्ज इज इनफाइनाइट. जो कंडक्टर है रेखीय चालक वह अनंत लंबाई का है, इसलिए गॉसियन सरफेस का जो डिस्टेंस होगा इस लाइन चार्ज से जो गॉसियन सरफेस का किसी पॉइंट का डिस्टेंस होगा इस सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस के दोनों साइड में वह सेम होगा. दिस इज फिगर. Now take to another small area of the Gaussian surface at the flat surfaces. Both there are two flat surfaces, AB, upper circular cap and lower circular cap. This is also called flat or plane surfaces. And this surface AD is called curved cylindrical surface. This surface AD is cylindrical surface. At the cylindrical, every point of cylindrical surface, the magnitude of electric field intensity must be same because distance of every point on the सिलिंड्रिकल सरफेस बी सेम फ्रॉम द लाइन चार्ज. पी पॉइंट से एडी जो आपका सिलिंड्रिकल बेलनाकार तल है उसके प्रत्येक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू सेम होगा, मान समान होगा, क्योंकि लाइन चार्ज से जो है लाइन चार्ज मीन्स चार्ज कंडक्टर, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर, चार्ज कंडक्टर और चार्ज वायर इज कॉल्ड लाइन चार्ज. इट इज ऑल्सो कॉल्ड लाइन चार्ज. तो यहां से चूंकि लाइन चार्ज से प्रत्येक पॉइंट का डिस्टेंस सेम होगा इसलिए गॉसियन सरफेस के जो बेलनाकार तल है एडी सिलिंड्रिकल पार्ट है, इसको सिलिंड्रिकल पोर्शन कहेंगे, इसके प्रत्येक पॉइंट पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू सेम होगा क्योंकि सिमेट्री है. माने यहां से जो डिस्टेंस है एडी जो सरफेस का सिलिंड्रिकल सरफेस का गॉसियन सरफेस का वह सेम है. इट इज द गॉसियन सरफेस. It is Gaussian surface. The length of Gaussian surface is L. If we take a small area, elemental area ds, then direction of electric field is along outward direction, normal to the surface, but direction of area vector here at the circular cap is normal to it. It is ds vector, एरिया वेक्टर. यहाँ जो एंगल फॉर्म हो रहा है 90 और यहाँ भी ऊपर वाला सर्कुलर जो फ्लैट पोर्शन है प्लेन सरफेस वहां भी जो है एक स्मॉल एरिया लेंगे. यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वह यहाँ भी जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का वह नॉर्मल है माने परपेंडिकुलर है इस लाइन चार्ज के. लेकिन जो स्मॉल एरिया ds है तो इस पर जो नॉर्मल ड्रॉन करेंगे फिर एक बार से वो ई वेक्टर के जो है परपेंडिकुलर है. यहाँ पर ई वेक्टर के साथ जो है ई वेक्टर के डायरेक्शन के साथ यहाँ ds वेक्टर का जो है फिर से 90 डिग्री का एंगल हो गया. तो जो फ्लक्स होगा टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस थ्रू सरफेस फाई AB से होकर फिर जो सिलिंड्रिकल कर्व पार्ट है AD उससे होकर और फिर जो है निचला जो फ्लैट पोर्शन है प्लेन सरफेस CD से होकर. तो ये केवल AB और CD से जो
इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है वो जीरो हो जाएगा, बिकॉज हेयर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रो ए बी इज ई डी एस cos 90 and here at CD it is also EDS cos 90, both will zero, cos 90 is zero. So at only, so electric flux survives, will pass through, survives or will pass through only the cylindrical portion, cylindrical surface AD, and which will be, because the direction of E vector and DS vector is same at point P. केवल जो बेलनाकार पृष्ठ है, बेलनाकार सिलिकल सरफेस पृष्ठ एडी है, उसी पर जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, उसी सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है पास करेगा सिलेंडर से गॉसियन सरफेस से, अब होगा ई डी एस cos 0। अब बाकी जो है ऊपर वाला सरफेस पर और निचले पर जो है नीचे लोअर जो आपका फ्लैट पोर्शन है या प्लेन सरफेस है, वहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वह जो है जीरो हो जाएगा। दिस इज द फिगर, यू कैन स्केच इट नाउ। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, suppose you can write, suppose an infinitely long charged wire xy of linear charge density, linear charge density, that is charge per unit length, lambda, as we can show in figure 1. Let P be a point at distance small r from at distance small r from the line charge, which is infinitely long charged wire और charge conductor, जो कि thin भी है, from the line charge xy, where electric field is to be calculated. Electric field is to be calculated, and to evaluate electric field at point P, we suppose a Gaussian surface, जो कि हमने बतलाया पहले, Gaussian surface हम P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए Gaussian surface जो है ड्रॉन करेंगे, जो कि यहाँ पर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इसलिए यहाँ जो Gaussian surface होगा वो सिलेंडर होगा, इमेजनरी सिलेंडर होगा गॉसियन सरफेस, और वही पॉइंट चार्ज होता तो स्फेरिकल होता। फॉर इट ड्रॉन ए गॉसियन सरफेस, जो कि इमेजनरी सिलेंडर है, गॉसियन सरफेस, इमेजनरी सिलेंडर ABCD, it is named as ABCD of length L। इस गॉसियन जो वायर है, लाइन चार्ज है, उसका लेंथ इनफाइनाइट है, वो अनंत लंबा है, लेकिन जो गॉसियन सरफेस है वह इस लाइन चार्ज का कुछ चार्ज को जो है इनक्लोज करेगा। तो गॉस थ्योरम उसी सिचुएशन में अप्लाई होता है जब कोई चार्ज जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है किसी स्फेरिकल सरफेस माने किसी क्लोज सरफेस के अंदर इनक्लोज हो जाए। तो इसीलिए पी पॉइंट से गॉसियन सरफेस लेने का क्या मकसद था कि इसका कुछ चार्ज जो है इनफाइनाइटली लाइन चार्ज का, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर का कुछ पार्ट का चार्ज जो है इसके अंदर इनक्लोज हो जाए, तभी जाकर के गॉस थ्योरम अप्लाई होता है। ऑफ लेंथ स्मॉल एल दिखाया गया है। तो टोटल फ्लक्स, अब हम गॉस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, टोटल फ्लक्स निकाल लेंगे इससे होकर के। टोटल फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस ABCD, थ्रू ABCD सीधे लिखते हैं, गॉसियन सरफेस है, इज फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, E फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स
हम तीनों पार्ट में लेंगे इसका गॉसियन सरफेस का, ए बी पर, फिर ए डी पर और फिर सी डी पर। फाई ए बी प्लस फाई ए डी द सिलिंड्रिकल पोर्शन प्लस फाई सी डी इजकल टू फाई ए बी इजकल टू, आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हम यूज करेंगे ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर ई डी एस कॉस थीटा ई डी एस कॉस 90। डी एस वेक्टर इज normal to the direction of electric field because electric field is always directed normal to the surface of the conductor, charge conductor, that is in radial direction, along the radial direction. E ds cos 90 प्लस इस सरफेस के लिए हो गया, ए बी के लिए। अब ए डी के लिए फिर यहाँ पर एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी का वैल्यू सेम, मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि यहाँ से सिमेट्रिकल है, सिलेंडर जो है सिमेट्रिकल है, इसके लाइन चार्ज से इसके सरफेस के एवरी पॉइंट का डिस्टेंस सेम होगा, इसलिए यहाँ पर ई वेक्टर और डी एस वेक्टर का डायरेक्शन सेम है। तो फाई ए डी जो होगा इस सिलिंड्रिकल सरफेस पर ई डी एस कॉस 0 डिग्री प्लस ई डी एस कॉस 90 डिग्री, दैट इज ये 0 हो जाएगा फर्स्ट टर्म, ये केवल बचेगा इंटीग्रल we can take integral क्योंकि इंटायर फ्लक्स है फाई cos 90 0 फर्स्ट टर्म ये होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कांस्टेंट है, इसका कहीं भी लेंगे लाइन चार्ज से कहीं भी इसका सरफेस का डिस्टेंस सेम होगा, आर ही होगा। देयरफॉर ई इज टेकन आउट फ्रॉम द इंटीग्रेशन, ई डी एस इंटीग्रल डी एस cos 0 1 प्लस 0 दैट इज ई डी एस, दिस इज इक्वेशन 1 एंड we should apply Gauss's theorem in this case in this symmetric charge distribution. So now using Gauss's theorem, we have using Gauss's theorem or Gauss's law, phi is equal to total electric flux is equal to q upon epsilon naught होता है गॉस थ्योरम में। तो पिछले लास्ट चैप्टर में हमने बतलाया था कि टोटल फ्लक्स जो होगा किसी चार्ज सरफेस से, वह किसी चार्ज कंडक्टर से या किसी सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसके अंदर जो चार्ज होगा उसका 1/ε0 टाइम होता है। तो यहाँ जो चार्ज इंक्लोज है, चार्ज तो यहाँ क्यों नहीं है, यहाँ पर जो है लेंथ आपका एल है, और यहाँ पर जो चार्ज जो है इसमें जो है कितना होगा, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा है, तो लेमडा इंटू एल हो जाएगा। लेमडा इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ एल, तो क्यू इक्वल टू हो जाएगा, क्यू होगा एल इंटू लेमडा। गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज इंक्लूड होगा वो एल इंटू लेमडा हो जाएगा, क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है चार्ज पर यूनिट लेंथ पूरे जो आपका वायर पर है वह यूनिट लेंथ पर जो चार्ज है वह लेमडा है, तो लेमडा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लेमडा इंटू एल, क्यू इज द चार्ज इंक्लोज बाय दिस गॉसियन सरफेस ए बी सी डी ऑफ लेंथ है विच इज लेमडा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन 0। दिस इज इक्वेशन 2 यूजिंग गॉसियस थ्योरम वेयर क्यू इज इक्वल टू lambda into L is equal to Q, charge enclosed inside the Gaussian surface ABCD, Gaussian surface which is imaginary cylinder, Gaussian surface, ये चार्ज इंक्लोज हो गया गॉसियन सरफेस का। नाउ अब ये जो है कंपेयर कर दिए दोनों इक्वेशन को, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है और ये गॉस थ्योरम यूज हो गया, दोनों ही फ्लक्स है, सो राइट हैंड साइड ऑफ बोथ इक्वेशन विल इक्वल both is electric flux, so lambda L by epsilon naught is equal to E into ds. Therefore we can write from equations 1 and 2 we have E into ds, integral ds is 2 pi RL, here टोटल सरफेस एरिया इंटीग्रल था, यहाँ 2 pi RL हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलिंड्रिकल सरफेस इंटीग्रल ds, यू कैन राइट इट 2 pi RL, तो E multiplied by 2 pi R into L, total surface area of the cylindrical surface 2 pi R. 2 pi R is the circumference of the circular cap and L is the distance between two circular cap. Lambda L upon epsilon naught
L and L is cancel out. Therefore, E is equal to 1 by 2 pi epsilon naught into lambda upon R. This is the required expression. This is the electric field intensity at point P at distance R from a line charge, that is infinitely long charge conductor. This is the required expression. This is equation 3. This is the required expression. This is the required expression. In vector form, we can write it as in vector form we can write this equation as E vector equals to 1 by 2 pi epsilon 0 lambda upon R cap. R cap जो है यूनिट वेक्टर है along this distance R कैप जो है, ये जो R का डिस्टेंस है, लाइन चार्ज से पी पॉइंट का डिस्टेंस है R, उसके लॉन्ग यूनिट वेक्टर है, उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन है वह चार्ज कंडक्टर की जो है परपेंडिकुलर है, दैट इज रेडियल है, इसको रेडियल हम कहेंगे। ये केवल R पर डिपेंड करता है, ये पूरा इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज कंडक्टर पर जो है उसके लेंथ पर डिपेंड नहीं करता है, केवल जो है ये R पर डिपेंड करता है, केवल रेडियल डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। सो ई डायरेक्शन ऑफ ई विल नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द लाइन चार्ज। ये आपका वेक्टर फॉर्म में हो गया। अब वेरिएशन आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी R के साथ यहाँ पर देख रहे हैं घट रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एज R इंक्रीजेज E डिक्रीजेज। तो द वेरिएशन ऑफ E with R, electric field intensity with distance R from the line charge with R is shown in figure 2. This is ये प्लॉट ऑफ E वर्सेस R, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का R के साथ ये ग्राफ है जो कि डिक्रीजिंग नेचर का। So now the first application is completed. Now second we have to discuss second application of Gauss's theorem. इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद the second application of Gauss's theorem is electric field intensity at a point say P due to an infinite plane sheet of charge. प्लेन शीट है, इस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये प्लेन शीट नॉन कंडक्टिंग है, इसलिए ये जो आपका इन्फिनाइट प्लेन शीट यहाँ दिखाए हैं ये भी, इसके आइदर साइड में ही चार्ज होगा, चार्ज का कंडक्शन दूसरे साइड में नहीं हो पाएगा, केवल एक साइड में होगा, या फ्रंट साइड में या बैक साइड में। और चूंकि इन्फिनाइटली इसका जो डायमेंशन है इन्फिनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज का वह इन्फिनाइट है, इसलिए सिमेट्री से जितना डिस्टेंस पर इधर पॉइंट हम लेंगे P, उतना ही डिस्टेंस पर जो है दूसरे साइड में भी इसका जो है दूसरे तरफ भी पॉइंट लेना होगा P डैश, और वहाँ भी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा E होगा, इधर इस साइड में भी दूसरा पॉइंट लेंगे इससे सेम डिस्टेंस पर, चूंकि इन्फिनाइटली इसका डायमेंशन है, इन्फिनाइटली लॉन्ग है, इन्फिनाइट डायमेंशन है, इसलिए सिमेट्री से जो है इसके फ्रंट साइड में इसके जो है इधर जितना डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P होगा, इंटेंसिटी का वैल्यू जितना होगा उतना ही जो है दूसरे साइड में उतना ही डिस्टेंस पर भी इंटेंसिटी उतना ही होगा, दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट होगा। तो यहाँ पर जो है इसके दोनों प्लेन, तो P पॉइंट से होकर के जो है एक गॉसियन सरफेस लिए हैं, गॉसियन सरफेस हम इमेजनरी सिलेंडर लिए हैं, यहाँ पर भी इमेजनरी सिलेंडर लिया गया है जिसका एक फेस जो है AP, एक फेस जो है AP वह इधर है दाएं साइड में, दूसरा फेस जो है इसका उतना ही डिस्टेंस पर जो है दाएं साइड में, माने दोनों, कहने का मतलब है कि गॉसियन सरफेस जो है इस साइड में भी होगा AB और दूसरा फेस जो है CD उसके दूसरे तरफ होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू सेम डिस्टेंस पर, जितना इधर उतना ही इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू सेम होगा और डायरेक्शन जो होगा एक दूसरे के अपोजिट होगा। लेकिन यहाँ नॉन कंडक्टिंग सरफेस है, इसलिए चार्ज जो है केवल एक सरफेस पर ही, आइदर फेसेस पर ही रिसाइड होगा, चार्ज का कंडक्शन दूसरे फेस पर नहीं होगा।
तो गॉसियन सरफेस हम ले लिए हैं ए बी सी डी, और यहाँ पर इसका फ्लैट जो पोर्शन है, जिसका जो समतल भाग है, इसका समतल जो सरफेस है या सर्कुलर कैप ए बी और सी डी, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और डीएस वेक्टर, यहाँ एक स्मॉल एरिया ले लिए हैं। गॉसियन सरफेस का टोटल सरफेस एरिया, गॉसियन सरफेस का टोटल सरफेस एरिया इसका जो है एस ले लिए हैं। तो यहाँ उस डीएस एस का जो है छोटा सा एलिमेंट डीएस है, तो यहाँ ई वेक्टर का डायरेक्शन आप जानते हैं कि इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज के जो है रेडियल डायरेक्शन में होगा, मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। इसके पर इस कंडक्टर इस सरफेस के जो है परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, इधर भी और उसके बाद जो है, और इस साइड में भी स्मॉल एरिया ले लिए हैं इसका एक डीएस, इस फ्लैट पोर्शन पर या प्लेन सरफेस पर, सीडी पर या सर्कुलर कैप पर। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन जो होगा रेडियल डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में है, और एरिया वेक्टर भी होगा। एरिया वेक्टर जो होता है, एरिया के जो स्मॉल एरिया होता है उसके परपेंडिकुलर होता है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डी एस कॉस जीरो, यहाँ भी ई डी एस कॉस जीरो सर्वाइव कर, फ्लक्स यहाँ पर सर्वाइव करेगा, यहाँ से फ्लक्स पास करेगा, लेकिन इसका जो सिंडिकल पोर्शन है एसी, उसके कोई पॉइंट किसी भी पार्ट पर किसी भी जगह पर जो है, किसी भी पॉइंट पर अगर हमने एक एरिया लिए हैं, तो यहाँ डीएस वेक्टर परपेंडिकुलर हो गया, और ई का डायरेक्शन तो कंडक्टर के जो है सरफेस के परपेंडिकुलर होगा ही आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ किसी भी प्लेन पार्ट पर लेंगे कहीं भी, तो ई वेक्टर और डीएस वेक्टर का डायरेक्शन जो होगा 90 हो गया। तो इसलिए फ्लक्स यहाँ पर सिंडिकल पोर्शन जो होगा, जो सरफेस होगा, वह जो है कोई फ्लक्स कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो यहाँ से फ्लक्स एसी के जो है, जो आपका सिंडिकल सरफेस है, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वह जीरो होगा। तो इसलिए टोटल फ्लक्स हम ले लेंगे। और यहाँ जो इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी जो कि एरिया से रिलेटेड है, पहला वाला केस था लाइन चार्ज था तो केवल लेंथ के लॉन्ग डायमेंशन था, इसलिए लीनियर चार्ज डेंसिटी लिए थे। यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी भी होगा इसमें सिग्मा। तो लेट ए बी एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज जो कि नॉन कंडक्टिंग है, केवल एक सरफेस पर, किसी आइदर एक सरफेस पर जो है, किसी आइदर सरफेसेस पर ही चार्ज होगा, कंडक्ट नहीं करेगा दूसरे सरफेस पर चार्ज। Having surface charge density, having surface सिग्मा, ये सिंबल है सिग्मा। चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज रिसाइड चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस। यूनिट एरिया पर जितना चार्ज होगा उसको सिग्मा से डिनोट करेंगे। पी पॉइंट है वहां निकालना है हमको, थ्रो पॉइंट पी, थ्रो पॉइंट पी। सपोज a Gaussian surface ABCD, कोई बेलनाकार जो पृष्ठ है, गौसीय तल जो है यहाँ बेलनाकार होगा, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है इनफाइनाइट डायमेंशन का है, ऑफ सरफेस एरिया इसका जो है एस है, इस गौसियन सरफेस का, ऑफ सरफेस एरिया एस, सरफेस एरिया एस। अब गॉस थ्योरम अप्लाई कर दिए, टोटल फ्लक्स निकाल लिए, केवल दोनों सर्कुलर कैप पर फ्लैट थी पर होगा, सॉरी जो फ्लैट आपका जो पार्ट है उस पर होगा, सिंगल पार्ट पर जीरो होगा। यूजिंग गॉसेस थ्योरम, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर द गॉसियन सरफेस phi E is equal to integral E dot ds, means EDS is equal to Q upon epsilon naught, और here charge enclosed inside this Gaussian surface is sigma into S। जितना पर यूनिट एरिया उसका सिग्मा पर यूनिट एरिया पर जो है उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, और इसका सरफेस एरिया गॉसियन सरफेस का एस लिए हैं, तो सिग्मा से अगर चार्ज पर यूनिट एरिया से एस में मल्टीप्लाई, सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई थे, चार्ज पर यूनिट एरिया में सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो चार्ज इंक्लूज होगा इस इनफाइनाइटली प्लेन शीट ऑफ चार्ज का वह आपको मालूम हो जाएगा। तो सिग्मा इंटू एस मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, और ई डी एस जो होगा ये तीनों पार्ट पर लेंगे, ए बी पर, दैट इज ई डी एस
cos 0 ए बी पर है, ए से बी पार्ट पर है, ए बी पर cos 0 प्लस ई डी एस cos 90, यहाँ इसके सिंडिकल पार्ट पर कहीं भी होगा cos 90 प्लस फिर सर्कुलर कैप सी डी पर जो है इंटीग्रल ई डी एस cos 90, यहाँ भी cos 0 सॉरी, यहाँ पर ई डी एस ये सी डी फ्लैट जो पार्ट है इस गॉसियन सरफेस का, यहाँ ई वेक्टर और डी एस वेक्टर का डायरेक्शन सेम है cos 0 डिग्री। इधर जो है ये गॉसियन, ये गॉस थ्योरम से ये हो गया। ये टोटल फ्लक्स है, टोटल जो फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसका फॉर्मूला ही हो गया। दोनों इक्वेट कर दिए, फाई सिग्मा इंटू एस अपॉन इप्सिलॉन नॉट सिग्मा ई एक्स, वेयर सिग्मा इंटू एस बराबर क्यू, चार्ज इनक्लोज्ड inside the Gaussian surface. ए से बी तक था, ये सी से डी पर है, सी डी पर ए टू सी, सॉरी ए टू सी था और ये सी डी पार्ट पर है। ये रहेगा ई cos 01। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताए पहले कि दोनों जितना इधर होगा सेम डिस्टेंस पर है उतना ही इधर भी होगा। ये बाहर टी एस प्लस ये 0 होगा सेकेंड वाला, प्लस यहाँ भी कांस्टेंट है इस साइड में डी एस सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये केवल हमने ए टू बी दे दिया है बताने के लिए कि ए बी फ्लैट पार्ट ए बी पर है, ये सी डी का मतलब फ्लैट पार्ट सी डी पर और ये सिलिकल पार्ट ए सी पर। ये डी एस टोटल सरफेस एरिया एस हो जाएगा, एक स्मॉल एरिया डी एस है तो टोटल सरफेस एरिया गॉसियन सरफेस का एस माने हैं, प्लस यहाँ बी इंटू एस इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और 2 ई एस इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एस एस कैंसिल हो गया इसलिए ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। This is the required expression for electric field intensity at a point P due to an infinite plane sheet of charge। ये एक्सप्रेशन हो गया विद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड का, विद्युत क्षेत्र का, इसको हिंदी में कहते हैं विद्युत क्षेत्र। And this is formula, this is 1, this is 2, this is the required expression। In terms of unit vector, in vector form, this equation E can be written as sigma is the surface charge density। लिखे हैं पहले, वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं E वेक्टर इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एन कैप दे देंगे। एन कैप का मतलब है कि इसके परपेंडिकुलर कंडक्टर जो है प्लेन शीट ऑफ चार्ज उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। इधर हम लिख देते हैं इन वेक्टर फॉर्म वी कैन राइट equation 2, we can write equation 2h, we can write E vector is equal to sigma upon 2 epsilon naught n cap। n cap is the unit normal vector E के डायरेक्शन में, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, where n cap is the unit normal vector, unit normal vector। नॉर्मल टू द सरफेस। सही हो गया, एक्सप्रेशन हो गया। नॉन कंडक्टिंग चार्ज के, नॉन कंडक्टिंग जो है प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए, अगर यही जो है प्लेन शीट ऑफ चार्ज इनफाइनाइट लेंथ का है लेकिन कंडक्टिंग होगा तो उसके दोनों तरफ चार्ज जो है हम कंसीडर करेंगे। इस चार्ज का हमारे जो है ट्रांसमिशन हो जाएगा, चार्ज का कंडक्शन हो दोनों साइड में। यहाँ तो नॉन कंडक्टिंग है तो एक साइड में लिए हैं, और अगर कंडक्टिंग होगा तो दोनों साइड के चार्ज को देखेंगे, और तब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एडअप हो जाएगा। ई और ई का जो डायरेक्शन होगा, इधर चार्ज होगा इस साइड में, दूसरे साइड में E1 और E2 दोनों समअप हो जाएगा, तो उस केस में जो है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। उसको भी हम देख ले रहे हैं। नाउ इन केस ऑफ ए कंडक्टिंग प्लेन शीट ऑफ चार्ज, जब प्लेन शीट ऑफ चार्ज कंडक्टिंग होगा तो उसके जो है दोनों फेस पर चार्ज होगा, मतलब दोनों साइड में चार्ज होगा, चार्ज कंडक्ट होकर करेगा दूसरे साइड में। वहाँ पहले केस, इसके एक्चुअल केस में था नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट ऑफ चार्ज था,
तो उसमें आइदर साइड में, चाहे एक साइड में चाहे बैक साइड में, माने उसके आइदर साइड में चार्ज जो है एक ही साइड पर रहेगा। तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन जो हो रहा था दोनों माने ये केवल सिंगल साइड के कारण जो है सिमेट्री से, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है एक साइड के कारण जो है देखे थे, तो उसमें जो है ई वेक्टर और इधर भी जो है जितना इधर सेम डिस्टेंस पर इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज से सेम डिस्टेंस में जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है दूसरे साइड में उतना ही था, तो डायरेक्शन अपोजिट था। इसमें जो है दोनों ये जो आपका कंडक्टिंग प्लेन शीट ऑफ चार्ज है तो दोनों साइड में चार्ज होगा और बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा कंडक्टर के अंदर जीरो होता है कंडक्टिंग, तो इससे जीरो होगा तो चार्ज जो होगा दोनों साइड पर होगा, तो उसके कारण कोई पॉइंट यहाँ लेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यूनिट चार्ज पर, तो उसको रिपेल करेगा। तो E1 का डायरेक्शन इस फर्स्ट फेज के कारण और दूसरे के कारण बी फेज के कारण जो है दूसरे साइड के कारण भी E2 भी जो होगा दोनों सेम डायरेक्शन में होगा। फिर इधर भी दूसरे साइड के लिए भी फिर वही बात होगी, इसके कारण फर्स्ट फेज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर और सेकंड फेज के कारण साइड के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। इससे रिजल्टेंट जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह E=E1 + E2 होगा। नॉन कंडक्टिव वाला में अपोजिट डायरेक्शन में था, ये जो है यहाँ जो है E=E1 वेक्टर + E2 वेक्टर, तो σ/2 ε0 लाइट निकाले थे प्लस σ/2 ε0 σ/ε0 that is E=σ/ε0. This is the result for electric field intensity at a point due to a conducting plane sheet of charge। और अल्टरनेटली गॉसेस थ्योरम अप्लाई करके जो है इसको देख सकते हैं, इसमें तो अप्लाई करके इतना रिजल्ट आए थे तो डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्टरनेटली, नहीं तो टोटल फ्लक्स जो होगा अब दोनों साइड का जो है कंडक्टिंग जो सीट है उसके दोनों साइड पर जो है चार्ज को उसमें कंसीडर करना होगा, इसलिए जो चार्ज Q=2 सिग्मा × S हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई सरफेस एरिया। और दोनों साइड के लिए, एक साइड के लिए चार्ज जो होगा वह सिग्मा × S था नॉन कंडक्टिंग वाले केस में, यहाँ कंडक्टिंग है तो दोनों साइड में होगा तो 2 सिग्मा × S हो गया, तो इसलिए 2 सिग्मा E × S हो गया, ये फ्लक्स का टोटल फ्लक्स हो गया फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और गॉस थ्योरम से ये हो गया Q/ε0, तो Q की जगह 2 सिग्मा × S हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो, S से S कैंसिल हो गया, तो E = σ/ε0 in vector form, E vector = σ/ε0 n cap। This is the expression for electric field intensity due to a conducting plane sheet of charge। ये कंडक्टिंग के लिए हो गया गॉस थ्योरम अप्लाई करके, और अल्टरनेटली इसको ऐसे भी देख सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों के फेज के कारण जो होगा किसी पॉइंट पर इधर भी लेंगे चाहे इस साइड में लेंगे उतना ही डिस्टेंस पर, तो सम अप हो जाएगा दोनों फेज के कारण, और बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा कंडक्टर के अंदर जीरो है, तो दोनों साइड के कारण जो है अल्टरनेटली देख सकते हैं इसी को इस ढंग से। तो यहाँ दोनों एड अप हो गया, सम अप हो गया, σ/2 ε0 निकाले थे, इसलिए E=σ/ε0 अल्टरनेटली हो गया, तो ये हो गया। अब तीसरा केस है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर। और थर्ड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज होलो स्फीयर और ए चार्ज स्फेरिकल सेल। चार्ज स्फेरिकल सेल में का भीतर का पोर्शन खाली होता है, वैकेंट होता है, तो ये जो है स्फीयर है, चार्ज स्फीयर है जिसके आउटर फेस पर सरफेस पर Q चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है। गॉस का यूज जो होता है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में होता है, लास्ट पार्ट में बतलाए थे। तो यहाँ पर Q चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है इसके सरफेस पर एक है जिसका रेडियस R है, और यहाँ पर 3 केस इसमें हो सकता है, जब पॉइंट P जो है स्फेरिकल सेल के या होलो स्फीयर के बाहर है, दूसरा सरफेस पर है और तीसरा अंदर है। लेकिन यह पहला केस है, एक्सट्रीम केस है, जब पॉइंट P जो है स्फेरिकल सरफेस के बाहर है। तो बाहर है तो P पॉइंट का जो डिस्टेंस है R डिस्टेंस और स्मॉल r डिस्टेंस पर है, तो इसलिए R इज ग्रेटर देन कैपिटल R। यहाँ जो R डिस्टेंस है वह रेडियस से होलो स्फेरिकल सेल के रेडियस से ज्यादा है, आउटसाइड में है, इसलिए R इज ग्रेटर देन R इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम इट्स सेंटर, सो R इज ग्रेटर देन R। और यहाँ जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है होलो स्फेरिकल सरफेस पर है, तो इसलिए यहाँ पर स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का है। इस चार्ज प्लस टोटल जो इसके सरफेस पर चार्ज है, इस चार्ज को इसके सेंटर पर भी हम सेंटर पर कंसंट्रेट मान सकते हैं, तो R डिस्टेंस पर जो है हम पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं 1/4πε0 Q/R कैपिटल R स्क्वायर। यहाँ पर सरफेस पर आउटसाइड P तो हमको निकालना ही है, उसी फॉर्म में भी आएगा। तो इस पूरे चार्ज को जो है सेंटर पर कंसंट्रेटेड माना जा सकता है एक पॉइंट चार्ज के रूप में। तो यहाँ पर जो है अब हमको P पॉइंट पर निकालना है R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो P पॉइंट से होकर के एक R रेडियस का, स्मॉल r रेडियस का ही, जो कि पॉइंट आउटसाइड पॉइंट P का डिस्टेंस है, एक होलो स्फीयर हम लिए हैं, गॉसियन सरफेस लिए हैं, इट इज द गॉसियन सरफेस, B इज द गॉसियन सरफेस। लेकिन यहाँ और दोनों केस और सब केस में जो लिए थे दोनों केस उसमें सिलेंडर था,
चूंकि लीनियर वहां पर था, लाइन के लॉन्ग जो है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, और यहाँ स्फेरिकल है, इसलिए गॉसियन सरफेस जो होगा सराउंडिंग द कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज स्फेरिकल. दिस इज द गॉसियन सरफेस. गॉसियन सरफेस. तो P से जो है गॉसियन सरफेस खींचे हैं, P पर आउटसाइड पॉइंट पर हमको निकालना है. तब यहाँ पर जो है गॉस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए. टोटल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिमेट्री से यहाँ भी देखिए इसके सेंटर से गॉसियन सरफेस B के हर एवरी पॉइंट पर एवरी पॉइंट का डिस्टेंस सेम है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी सेम होगा. और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन है वह फिर रेडियल डायरेक्शन में है, मतलब इसके सरफेस के जो स्फेरिकल सरफेस है, हॉलो स्फीयर है, उसके सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की ओर है, आउटवर्ड डायरेक्शन में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. और इसका गॉसियन सरफेस का एक स्मॉल एरिया ds ले लें तो एरिया वेक्टर भी इसके सरफेस के नॉर्मल होगा. तो ई वेक्टर और ds वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, इसलिए एंगल जो होगा दोनों के बीच में यहाँ 0 डिग्री हो जाएगा. तो इसलिए यूनिफॉर्मली चार्ज है Q, रेडियस कैपिटल R, ड्रॉन आउटसाइड पॉइंट पर निकालना है, इसलिए स्मॉल r जो डिस्टेंस कैपिटल R से ज़्यादा है. ड्रॉन ए गॉसियन सरफेस. वो भी स्फीयर होगा, स्फीयर भी इमेजिनरी स्फीयर भी गॉसियन सरफेस हो गया. From point P of radius capital, radius small r. This r is the distance of point P, which is larger than r, greater than r. The radius small r. Using Gaussian theorem, टोटल फ्लक्स निकाल लेंगे गॉसियन सरफेस से. टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर इंटायर क्लोज सरफेस है. इंटीग्रेशन देखिए सबके दे देंगे यहाँ. ई डॉट डी एस वैक्टर, तो ई डी एस ई वैक्टर डी एस वैक्टर दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो ई डी एस कॉस 0 डिग्री इक्वल टू क्यू अपॉन जो चार्ज इंक्लोज होगा गॉसियन सरफेस के अंदर, वह एक आउटर सरफेस पर जो चार्ज हो, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1 बाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन मल्टीप्लाइड बाई द चार्ज इंक्लोज इनसाइड द सरफेस. और ई तो कांस्टेंट है, हम भी बताया हमने सिमेट्री से. ये ई बाहर हो गया, ई डी एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ई इंटू डी एस 4 पाई, वो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. देयरफॉर ई इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर. This is the required expression of electric field intensity at a point outside the spherical surface. और इसको इन वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं इसी को. इन वेक्टर फॉर्म इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज इन वेक्टर फॉर्म. यू कैन राइट E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q upon यहाँ स्मॉल r गॉसियन सरफेस का रेडियस r है, और इस ओरिजिनल जो होलो स्फीयर है उसका रेडियस कैपिटल r है. तो गॉसियन सरफेस से हम फ्लक्स देख रहे हैं. इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस ये है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, द गॉसियन सरफेस फाई है. फार्मूला से ई डॉट डी एस और गॉस थ्योरम से ही है, दोनों को इक्वेट कर दिए. तो क्यू अपॉन आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर, और डायरेक्शन इसी के लॉन्ग है, इसको लिख सकते हैं आर कैप. ओपी के लॉन्ग डिस्टेंस आर है, उसी के लॉन्ग डायरेक्शन है, आउटवर्ड सरफेस के आउटवर्ड नॉर्मल है, इसलिए आर कैप इज द यूनिट वेक्टर लॉन्ग आर. दिस इज द. अब सेकेंड केस है सरफेस पर, और थर्ड केस होगा इनसाइड में. सेकेंड केस में है पॉइंट पी लाई इनसाइड द चार्ज हो रहे. सेकेंड केस है पॉइंट पी लाई एट द सरफेस
एट द सरफेस, सॉरी इस थर्ड केस लेंगे इसको, लाइज एट द सरफेस, लाइज एट द सरफेस ऑफ चार्ज होलोस्फेयर, ऑफ द चार्ज होलोस्फेयर। सरफेस पर ले लिया तो इसमें आर जो डिस्टेंस पी पॉइंट का डिस्टेंस आर था आउटसाइड के केस में, अब ये सरफेस पर आ गया तो जितना रेडियस है होलोस्फेयर का रेडियस है उसी के इक्वल हो गया, तो आर इक्वल टू आर। तो लास्ट इक्वेशन में आप जो आउटसाइड पॉइंट में लाए थे 1/4 पाई इक्वल टू 1 पी पर, आउटसाइड पॉइंट पी पर एक्सप्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो स्मॉल आर की जगह कैपिटल क्यू आर पुट कर देंगे आ जाएगा। और चाहे गॉसियन सरफेस से भी टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा ई इक्वल टू 4 पाई स्मॉल आर की जगह कैपिटल, यहाँ से पी पॉइंट से भी गॉसियन सरफेस खींचेंगे, पी पॉइंट को थोड़ा आउटसाइड लेंगे जिससे कि ये सटा हुआ होगा इससे, तो इसलिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा सरफेस से फाई इक्वल टू इंटीग्रल ओवर ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ई बाहर हो जाएगा ई डी एस कॉस 0 और इंटीग्रल ई डी एस कॉस 0, ई वेक्टर और डी एस वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो जाएगा यहाँ पर भी वही ई वेक्टर, और पी पॉइंट से थोड़ा सा बाहर लेंगे गॉसियन सरफेस, उसको लगभग आर इक्वल टू आर मानेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ डी एस वेक्टर का भी डायरेक्शन वहाँ भी सेम होगा, ई डी एस कॉस 0 डिग्री इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ई कांस्टेंट होगा गॉसियन सरफेस के इस पॉइंट पर कॉस 0 1 इंटीग्रल डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ई इंटीग्रल डी एस हो जाएगा आर रेडियस का गॉसियन सरफेस है जो कि आर के इक्वल है, थोड़ा सा इसके जस्ट बाहर भी ले सकते हैं सटा हुआ, तो आर इक्वल टू आर, तो कैपिटल आर ले लेंगे अब 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस which is nearly at the same place to that of the original sphere A, q upon epsilon naught E equal to 1/4 pi epsilon naught into q upon r square capital R square, that is r equal to r इस केस में हो गया, that is r putting उस एक्सप्रेशन में आउटसाइड वाला में डायरेक्ट आर इक्वल टू कैपिटल आर भी कर देते तो ऊपर भी हो जाता, लेकिन गॉस थ्योरम हमने अप्लाई कर दिया यहाँ भी, इससे सटा हुआ पी पॉइंट से गॉसियन सरफेस ले सकते हैं जो कि लगभग जो है नियरली आर के ही नज़दीक होगा, तो चार्ज इंक्लोज करेगा ये ई डॉट डी एस, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर आर इक्वल टू आर, और ये जो वैल्यू होगा दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का है सरफेस पर, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, और ये मैक्सिमम वैल्यू होगा, ये जो वैल्यू होगा ई का ये मैक्सिमम वैल्यू होगा, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि होलोस्फेयर चार्ज होलोस्फेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 हो जाता है, और बाहर से सरफेस की ओर आएंगे घटे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, बाहर से जाएंगे तो ऊपर भी घटेगा, तो सरफेस पर जो है मैक्सिमम होगा, तो दैट इज ई मैक्स, ये जो वैल्यू है ई मैक्स हो गया। अब थर्ड केस इज पॉइंट पी लाइज इनसाइड द होलोस्फेयर, पॉइंट पी lies inside the charged holosphere, और यहाँ जो डिस्टेंस होगा पॉइंट पी का वह इसके रेडियस से हॉलो चार्ज स्फीयर का जो रेडियस होगा उससे छोटा होगा, अंदर आ जाएगा, दैट इज आर इज लेस देन आर। लेट ए गॉसियन सरफेस यहाँ लेते हैं अंदर में, गॉसियन सरफेस यहाँ सी ले लेते हैं थ्रू पॉइंट पी, इनसाइड द हॉलो चार्ज स्फीयर और इनसाइड द स्फेरिकल सेल, चार्ज स्फेरिकल सेल या हॉलो स्फीयर एक ही बात है, स्फेरिकल सेल हो या गोला हो, खोखला गोला चार्ज भीतर खाली होता है, चार्ज स्फेरिकल सेल, ऑफ रेडियस, यहाँ डिस्टेंस पॉइंट पी का आर डैश ले लेते हैं, आर तो बाहर था
आर डैश ले लेता है इसके इस फिगर में। तो टोटल गॉसियस यूजिंग गॉसियस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा गॉसियन सरफेस जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो फाई इक्वल टू इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर दैट इज ई डी एस कॉस जीरो, केवल ई डी एस लिखते हैं कॉस जीरो 1 इक्वल टू चार्ज इनक्लोज होगा, अंदर में कोई चार्ज जो है गॉसियन सरफेस के अंदर नहीं है तो 0 अपॉन, चूँकि चार्ज क्यू इक्वल टू 0 इनसाइड द गॉसियन सरफेस, चार्ज क्यू इक्वल टू 0 inside, no charge inside the Gaussian surface, inside the Gaussian surface C. ये ओरिजिनल आपका होलो स्फीयर है या स्फेरिकल सेल है ओरिजिनल वाला, जिस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है कंटिन्यूअस, ए पर क्यू है, रेडियस स्क्वायर है कैपिटल आर, और अब पॉइंट पी अंदर आ गया, आर जो डिस्टेंस है इसी डिस्टेंस को बाहर की जगह आर डैश ले लिए डिस्टिंग्विश करने के लिए आउटसाइड इनसाइड में। अब देखिए यही गॉसियन सरफेस हो गया, आज पॉइंट पी लिया है, आर डैश डिस्टेंस है जो कि आर से छोटा है अंदर में, तो कोई चार्ज नहीं है, जो भी चार्ज है सरफेस पर है क्यों, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, इस गॉसियन सरफेस सी के अंदर में कोई चार्ज नहीं है, इसलिए गॉसियन थ्योरम से फ्लक्स 0 हो जाएगा और डिफिनेशन से फ्लक्स ये हो गया, और दिस विल ओनली पॉसिबल इफ ई इक्वल टू 0 बिकॉज एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ई डी एस इक्वल टू 0 बिकॉज चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस सी इज 0, कोई चार्ज सी के अंदर नहीं है, इसलिए गॉस थ्योरम से क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 क्यू 0 हो गया, और ये तभी पॉसिबल होगा ये रिलेशन जो कि सरफेस एरिया तो उसका हो जाएगा गॉसियन सरफेस का ई मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई आर डैश स्क्वायर, क्योंकि गॉसियन सरफेस का आर की जगह आर डैश रेडियस डिस्टेंस ले लिए हैं, तो ये तो 0 हो नहीं सकता है, एरिया स्फीयर का 0 नहीं हो सकता है, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब ई 0, देयरफॉर E is equal to 0. Electric field inside the hollow spherical shell is 0. This is the result. Electric field intensity inside the hollow spherical shell is 0. क्योंकि एरिया जो है 4 पाई r डैश स्क्वायर ये कैन नॉट बी 0. Therefore E is equal to 0. Therefore any hollow charged sphere inside any hollow charged sphere या और a charged inside a charged spherical shell इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0, तो तीनों केस आपका हो गया। अब इसका ई और आर का तीनों केस का वेरिएशन को हम एक ग्राफ से दिखा दे सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं, दिखा देते हैं उसको ये, और ये वेरिएशन है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है प्लॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आर के साथ जो है डिस्टेंस के साथ कैसे वेरिएशन होगा, तो ये चार्ज होलो स्फीयर है या स्फेरिकल सेल है, तो इसमें हम दिखाए हैं कि वाई एक्सिस के लॉन्ग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एक्सिस के लॉन्ग आर रखे हैं, तो यहाँ पर जो है पॉइंट आर इक्वल टू कैपिटल आर है, सरफेस का केस है, सरफेस पर जहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गया, और उसके भीतर आएंगे आर इज लेस स्मॉलर देन कैपिटल आर, मतलब पॉइंट पी का डिस्टेंस रेडियस ऑफ स्फीयर से जब कम होगा, आर इक्वल टू आर, ये पॉइंट सरफेस पर है, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सरफेस पर किसी भी पॉइंट पर यहाँ भी हो चाहे सरफेस कहीं हो वहाँ मैक्सिमम होगा, तो ये मैक्स दिखाए हैं सरफेस के लिए, लेकिन सरफेस के भीतर कोई भी पॉइंट होगा, थोड़ा भी अंदर आएंगे या सेंटर पर रहें चाहे थोड़ा भी अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 0 होगा। देखिए यहाँ पर पूरा सैडेड लाइन से यहाँ दिखाए हैं, इसका ये 0 हो गया, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का 0 वैल्यू है, तो यहाँ से यहाँ तक मतलब आर इसका सरफेस के थोड़ा भी अंदर कहीं भी होगा, सेंटर से लेकर सरफेस के अंदर कहीं भी पॉइंट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा। इसको थोड़ा मोटा करके साइडेड करके यहाँ दिखाए हैं, शो किए हैं, 0 से आर तक जो है एकदम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई बराबर 0 लिख दिए हैं, स्मॉल आर अगर पॉइंट पी का डिस्टेंस जो है, पॉइंट पी था यहाँ, तो सरफेस का पॉइंट पी, तो सरफेस पर आउटसाइड होगा तो बाहर होगा, अंदर होगा तो अंदर चला जाएगा, तो कहीं भी अंदर होगा सेंटर से लेके सर्कमफ्रेंस तक, तो उसका वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ से लेके यहाँ तक 0 होगा। जैसे ही सरफेस पर आएंगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गया, ये बढ़ करके मैक्सिमम हो गया सरफेस पर, कहीं भी सरफेस का पॉइंट होगा वहाँ ई मैक्स हो गया, और फिर जब सरफेस से बाहर जाएंगे आउटसाइड
जाएंगे, सरफेस के आउटसाइड मतलब आउटसाइड द चार्ज होलो स्फीयर जाएंगे, हम पढ़ेंगे तो उस स्थिति में, है ना, इफ वी गो बियॉन्ड द सरफेस ऑफ द होलो चार्ज स्फीयर देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीजेज विथ डिस्टेंस with negative slope. The curve which is represented by this curve, whose slope is negative, which is downward, that is downward. तो ये घट रहा है, घटते घटते बहुत लार्ज डिस्टेंस पर जाकर के ये बहुत कम हो जाएगा, नियरली इक्वल टू जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, लेकिन फाइनाइट डिस्टेंस पर इसका वैल्यू जो होगा वो होगा, घटेगा, डिक्रीज करेगा सरफेस के बाहर, सरफेस पर मैक्सिमम हो गया। देखिए लाइन जो है उसके अंदर जो है जीरो है पूरा, ये जो है सॉलिड लाइन से दिखाए हैं पूरा ब्लैक करके, यहाँ से कहीं भी सरफेस के अंदर होगा सरफेस से तो जीरो होगा, और जैसे ही सरफेस पर होगा ये बढ़ करके जो है ये मैक्सिमम हो गया, ये मैक्सिमम वैल्यू ये दिखाए हैं इस लाइन से। अगर उसके बाद जो है जब आर इक्वल टू ग्रेटर सरफेस से बाहर जाएंगे पॉइंट, इफ आर इज ग्रेटर देन आर देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑल्सो डिक्रीजेज विथ डिस्टेंस आर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर बढ़ने के साथ स्फीयर के बाहर होलो चार्ज स्फीयर स्फीयरिकल सेल से बाहर जाने पर घटेगा, जो कि दिखाया गया है ग्राफ से, ये कर्व से जो है निगेटिव स्लोप है, और बहुत दूर जा करके नियरली इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो ये तीनों एप्लीकेशन जो कि आपका टेक्स्ट बुक में प्रोवाइड है तो दिया है, ये तीनों एप्लीकेशन हो गया, गॉसेस एप्लीकेशन का मेन जो एप्लीकेशन था वो हो गया। और एक और एप्लीकेशन हो सकता है लेकिन वो सेकेंड चैप्टर में जो है पढ़ना है उसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज कंडक्टर में, तो वहाँ पर उसको कर देंगे गॉस थ्योरम से, उस प्रॉपर्टी में उसको एक कर देंगे। लेकिन इसके में बुक में टेक्स्ट बुक में 3 मेन एप्लीकेशन है, तीनों हमने कर दिया, और अब इसमें बच गया केवल ये चैप्टर समाप्त हो गया। अब केवल इसमें प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कुछ हमने किया है, नहीं कुछ ही किया है, लेकिन बहुत सारा टॉपिक जैसे कूलम्ब्स लॉ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, गॉसेस थ्योरम जो लास्ट क्लास में हुआ था, और एप्लीकेशन, तो उस सब का प्रॉब्लम जो है अगले पार्ट में, अब प्रॉब्लम देखेंगे, चैप्टर समाप्त हो गया, तो अगले पार्ट में वी विल सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स एंड in the next part, and next part followed by the next part, एक या 2 पार्ट जो भी हो उसमें जितना लगे उसमें देखेंगे, प्रॉब्लम जो है मेन में सब फॉर्मूला पर जो है देखेंगे। और आज यहीं तक, थैंक यू।